भारत हमारा करीब 3 सबसे अहम मुल्क है, दुश्मन मुल्क है। अब ये तीसरी बार जरा सोचें, फिर इलेक्ट होने के लिए, मुंतखब होने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल वहाँ हो चुके हैं। इन 10 बरसों में भारत का समाज, वहाँ की मईशत, वहाँ की सियासत बहुत तेज़ी से बदली है। बहुत लोग हैरान हैं कि एक शख्स, एक पार्टी किस तरह से पूरे मुल्क का एक कैरेक्टर बदल के रख देता है। मोदी साहब क्या वो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं? नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, और अगर उनके पास ये इख्तियार आ जाता है आईनी तरमीम का, तो वो इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। पिछली दफ़ा उनका टारगेट था 300 से ज़्यादा, और उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। 300 से ज़्यादा नशस्तें ली, 353 सीट्स उन्होंने ली थी। इस दफ़ा मोदी सरकार का नारा है अब की बार 400 से पार। तो इस दफ़ा उनका एम्बिशन और बढ़ गया है और वो कह रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे। भविष्यवाणी कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, या प्रेडिक्शन कहते हैं, मैं आपको दे रही हूँ कि मोदी साहब आ रहे हैं। জয় হিন্দ ডিফেন্স লাভার্স, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, গতকালকে থেকে ভারতের ভেতরে শুরু হয়েছে ভোট, যেখানে আবার বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার টার্গেট রেখেছে 400। আর এই বিষয়টাকে নিয়ে এখন পাকিস্তানের ঘুম উড়ে গেছে। তাদের দাবি যে এবারে যদি বর্তমান থাকায় ক্ষমতা সরকার আবারও পুনরায় সরকার তৈরি করে, তাহলে তো তাদের ওয়াট লেগে গেল। হ্যাঁ, কেননা এই মুহূর্তে বিভিন্ন জায়গায় ভোটের আবহে সব জায়গা থেকে জয়ের উচ্ছ্বাস উঠে আসছে। কেননা আপনারাও জানেন যে আমাদের দেশে ভোট পাবলিক, অর্থাৎ ভোট দেওয়ার পরে আমাদের এখানে নির্বাচন হয়ে তার ফলাফল আসে, এমনকি সেটার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কে দেশের মন্ত্রী হবে, কে প্রধানমন্ত্রী হবে, মানে সবকিছু ওটার উপরে ডিপেন্ড করে হয়। কিন্তু পাকিস্তানে তো এমনটা হয় না। হ্যাঁ, পাকিস্তানেও ভোট হয়, পাকিস্তানের জনসাধারণ ভোট দেয়, কিন্তু তারপরে কিন্তু সেখানে যে মেন সিনারি বা মেন খেলাটা হয়, সেটা খেলে পাকিস্তানের সেনা। তারা যেটাই সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে। মানে পাকিস্তানের ভোটটা একটা জাস্ট লোক দেখানো। কিন্তু এখন ভারতের ভেতরে যে ভোট এসেছে, সেখানে যদি আবারও পুনরায় বিজেপি সরকার তৈরি হয়, তাহলে পাকিস্তানিদের চিন্তা, তারা আবার নতুন নতুন প্রোপাগান্ডা ভারতের বিরুদ্ধে শুরু করেছে। আর এটা করাটা স্বাভাবিক, কেননা বর্তমান থাকায় ক্ষমতা সরকার পাকিস্তান তো কোনো কিছু করে উঠতে পারছে না। তাই এই সরকারকে কোনো রকম ভাবে ফেলে দিতে পারলে বা প্রোপাগান্ডা করে বা যেমন কোনো প্রকারে কোনো রকম ভাবে যদি ক্ষতি করে এই সরকারকে যদি একদম নিচে নামিয়ে দিতে পারে, আর তাদের ইচ্ছা মতন ক্ষমতায় থাকা সরকার, মানে কোন সরকারের কথা বলছি সেটা আপনারাও জানেন, সেই সরকার পুনরায় খাড়া করতে পারলে তাদের আবার অনেক লাভে লাভ। যাই হোক বন্ধুরা, এটা তো আপনারা বোঝেন, ভোট এসছেন, আপনি হয়তো ভোট দিতে যাবেন। তবে যাই হোক বন্ধুরা, এবার ভোটটা চোখে দেখে দেবেন, কিন্তু তার আগে দেখার আগে একটু ব্রেন থেকে ভাববেন, ভেবে দেবেন। আমি কোনো পার্টির এখানে সমর্থনের কথা বলছি না, কেননা আমাদের দেশ বাঁচলে তবেই তো আমরা বাঁচবো। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি আগে দেখে নিন পাকিস্তানের মিডিয়াতে কি চলছে। আর হ্যাঁ, ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। यहाँ पे उन्होंने राणा सनाउल्ला साहब ने उस दिन कही है, वही गलती लगता है, वही वहाँ पे मोदी साहब वो दोहरा रहे हैं। राणा सनाउल्ला साहब ने उस दिन कहा है टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हमें हारने की वजह ये भी थी कि इमरान खान साहब पे इन्होंने धड़ाधड़ उनको सजाएं दे दी, जेल में बैठे थे, ऊपर से उनको 30-35 साल सजाएं दे दी और उनको हमदर्दी का वोट पड़ गया। ये राणा सनाउल्ला साहब ने, साबिक वजीर दाखिला पाकिस्तान के, उन्होंने फरमाया। अब यही कुछ उधर होने वाला है। अब देखते बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि होता है या नहीं होता। जस्ट आई एम ट्राइंग टू असेस इट कि इस वक्त ये जो है, ये हो गया अपने केजरीवाल साहब, इनके बड़े, अगर मुझे याद आते, जहाँ पे एक इंडियन डिप्लोमेट थे, तो एक दफ़ा उन्होंने मुलाकात हुई, कुछ ये खाने पे थे, किसी के यहाँ आए हुए थे, तो कुछ 10-15 लोग भी थे। अनवर बेग साहब हमारे मरहूम दोस्त, बड़े प्यारे थे, तो उन्होंने कोई खाना किया हुआ था, तो वहाँ पे 8-10 जर्नलिस्ट भी थे। तो उनसे कोई बात होने लगी ना केजरीवाल साहब के हवाले से, इंटरेस्टिंग थी। तो उन्होंने कहा जी केजरीवाल साहब जो है वो अगेन वो इंडिया के वो हैं, ये इमरान खान है, मुझे आज तक उनके अल्फाज याद हैं। अब उन्होंने वो जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि उनको इंडिया का इमरान खान कैसे समझा जाता है, वो मैं इस टीवी पे नहीं बताता, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी थी। सो उनका ये था केजरीवाल इज अगर इमरान खान ऑफ इंडिया। मोदी साहब वहाँ पे 30 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या नहीं बनते हैं, और अगर बनते हैं तो उनकी पार्टी क्लेम कर रही है कि वो 400 सीटें लेके जाएंगे, जो कि सिर्फ राजीव गांधी को ये एजाज़ हासिल हुआ था। और अगर वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये सिर्फ नेहरू साहब को ये एजाज़ हासिल था। और 400 में से वो उनका क्लेम ये है कि 370 हम खुद लेके जाएंगे और 30 हमारे एलाइज़ की आएंगी। और उनके जो मुखालिफ हैं, उनका ये कहना है, क्लेम है
कि वो 180 से ज़्यादा बीजेपी लेने नहीं पाएगी, और 543 का हाउस है, तो उससे आप हिसाब रख लें करीबन 272 के करीब जो है उस पर गवर्नमेंट बनती है। आज के दिन इंडिया के इलेक्शन में, इंडियन पोल्स में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हुआ क्या कि जो वोटिंग थी उसका टाइम 7 बजे था, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होना थी, लेकिन लोगों का जो जोश और जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है, इसको जो कवर करता हुआ मीडिया हमें ये बता रहा है कि लोगों की वहां पर लाइनें लगी हुई थी पोलिंग स्टेशंस के बाहर सुबह 6 बजे से। 5 बजे 6 बजे सुबह उठकर लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और लाइनें लग चुकी थी। इतना वो इमोशनल है इसके बारे में, इतने एंथुजियास्टिक हैं इंडियंस अपने इलेक्शंस के बारे में और अपना राइट टू वोट यूज करने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इतने ज्यादा उनको जल्दी है कि वो सुबह 5-6 बजे वोटिंग लाइंस में लग चुके थे। वेल डन, ऐसा ही होना चाहिए। एक जिंदा कौम, हम जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे सुबह से ही, तो लोग वोट डाल डाल के, तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि उस वक्त भी हम कह रहे थे और अभी भी कि कोई जिंदा कौम, नेशन वही होती है जो अपने वोट का हक बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। और लोग गलियों में और सड़कों पर निकलते हैं अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए, और फिर वोट का हक इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि आज इलेक्शन का फर्स्ट डे है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जालिमों मोदी आ रहा है। अब आपने देखा कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है उसकी क्या खबरें हैं। उसकी खबर ये है मोदीज इलेक्शन, मोदी सीक्स थर्ड टर्म, तीसरी टर्म जो है वो नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। हर मीडिया के ऊपर ये खबर, इलेक्शन की खबर ऐसे चल रही है कि इसको इंडियन इलेक्शन और मोदीज इलेक्शन कहा जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि देखिए सब इस तरह रहे हैं इसको। जो थर्ड टर्म है नरेंद्र मोदी साहब की, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया की तारीख में, इंडिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी साहब दूसरे ये वजीर आजम होंगे जो कि थर्ड टर्म जीतेंगे, थर्ड टर्म लेंगे। इससे पहले नेहरू भी मेरा ख्याल है थर्ड टर्म उन्होंने ली थी। देखिए हर एक का ना अपना अपना तज्जिया है और हर एक की अपनी, लेकिन ये जो है ना, ये भविष्यवाणी कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, या प्रिडिक्शन कहते हैं, मैं आपको दे रही हूँ कि मोदी साहब आ रहे हैं। कि किसी ने अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया हो और वो ये प्रॉमिस करे कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में अपनी इस टर्म में बनाऊंगा, तो लोग उसको वोट ना दें। ये कैसे पॉसिबल है, मुझे आप बताएं। मतलब बड़े ही कोई, अब हम क्या चलें, वो वोटिंग का सिलसिला है तो मैं कुछ नहीं कह रही, जनता को मैं कुछ नहीं कह रही, जो भी करना चाहते करें, आपकी जो मर्जी करें भाई, हमें। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि अगर क्या मतलब मोदी साहब जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं दोबारा, बल्कि तिबारा सहबारा, कि जो उन्होंने इंडिया के को बना दिया, जो इंडिया के साथ कर दिया, वो पूरी दुनिया इस वक्त बात करी है। তো বন্ধুরা, আমার যখন অনেক অনেক মন খারাপ থাকে তখন দুটো দেশের মিডিয়া অবশ্যই দেখি। প্রথম লিস্টে আছে আমার পূর্ব পাকিস্তান, দ্বিতীয় হচ্ছে পাকিস্তান। যখন অনেক বেশি মন খারাপ থাকে, ভালো লাগে না, তখন এই পূর্ব পাকিস্তানের মিডিয়া দেখলে খুশি হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, আমরা যদি পূর্ব পাকিস্তানের মিডিয়ার পরে যদি পাকিস্তানের মিডিয়াকে দেখো আপনারা আনন্দিত হন বা মনে খুশি আসে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।